Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is biotechnology, principles and processes. In the previous lectures, we studied about the principles of biotechnology and the various tools which are required in recombinant DNA technology. In today's class, we will study about the different processes which are involved in the process of recombinant DNA technology. So let's study. Okay students, let's continue our chapter Biotechnology, Principles and Processes. Students, in the previous lectures, we studied about biotechnology principles, like what is biotechnology, what are the various tools which are required for the process of recombinant DNA technology. We studied about restriction enzymes, that is our molecular scissors, how they are named, what are restriction sites and how do they act. Then we studied about the cloning vectors, what are the important characteristic features of a cloning vectors. We studied about host. Students, today we will study about the various processes which are involved in the process of recombinant DNA टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो डीएनए सीक्वेंस है, वो इंसर्ट करते हैं हम वेक्टर के अंदर, और वेक्टर जो है देन इट रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल्स. सो व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस, इसमें से कौन सी स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, हाउ वी प्रिपेयर द जीन एंड हाउ वी इंसर्ट द जीन इनटू द वेक्टर, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल्स एंड हाउ द क्लोन जीन इज डिटेक्टेड. So in today's class we will study in detail about the various steps which are involved in the process of recombinant DNA technology. So processes of recombinant DNA technology. Students, these are the main steps which are required in the process of recombinant DNA technology. We will study them one by one in detail. So first of all, the first step is the isolation of genetic material. सबसे पहले हम अपने genetic जो हमारा material है DNA, उसको isolate करेंगे. Then cutting of DNA at specific location. DNA का कौन सा part है जो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सो कटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए, राइट. देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. स्टूडेंट, पीसीआर इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, हम वेक्टर के साथ फॉरेन जीन को लिंक कर देते हैं, तो एक हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया जिसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं. तो किस तरह से वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, देन वहाँ पे वो जो जीन है वो एक्सप्रेस करता है, उसको रेप्लिकेट करता है विद इन द होस्ट सेल, एंड देन वी गेट द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. And last is the downstreaming processing, and we will study shortly what is downstream. Okay. So students, the first step is isolation of genetic material. So genetic material students हमने कहाँ से isolate करना है? Bacterial cell से isolate हो सकता है. It can be isolated from the plant cells or the animal cells. So we will use different types of enzymes to break the cell envelope. क्योंकि डीएनए कहाँ है स्टूडेंट? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, इन सब से हमको जो वी विल ओपन द सेल एनवेलप, और माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी रिलीज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर हम अपना डीएनए जो है या जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें बैक्टीरिया सेल से लेना है, सो वी विल यूज़ द एंजाइम लाइसोजाइम, because bacterial cell wall is made up of lysozyme. Then cellulase is used for plant cell. Similarly, अगर हमें फंगस से हमें डीएनए को जो है आइसोलेट करना है, then we will use chitinase, because the nature of the cell wall in case of fungi is chitin. So you must note it down student, 3 different types of enzymes. Like in bacteria we are using lysozyme, for plant cells it is cellulase, and for fungus it is chitinase, right. सो ये सेल वॉल जो है, सेल एनवेलप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे.
स्टूडेंट्स जो RNA है, अब हमें DNA चाहिए तो RNA जो है उसको रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज़ किया जाता है। एंड सिमिलरली जो DNA है उसके साथ स्टूडेंट्स प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो DNA इज इंटरवाइंड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक हिस्टोन्स। सो प्रोटीन्स जो एडिशनल प्रोटीन्स हैं दे कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ एंजाइम protease, and RNA can be removed by treating with the enzyme ribonuclease, right? So हमारे पास DNA सैंपल आ गया एंड DNA सैंपल जो है वो फर्दर हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। जब चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो DNA प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। सो यू कैन सी दिस डायग्राम के किस तरह से हम चिल्ड इथेनॉल जो है वो डालते हैं। सो DNA जो है उसके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सो ये जो फाइन थ्रेड्स जो हमें DNA के दिख रहे हैं, सेपरेटेड DNA, इट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हाउ वी आइसोलेट। सो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, दैट इज हाउ वी आइसोलेट द genetic material or the DNA. Okay, next. Gel electrophoresis technique, students, we have already studied in the previous lectures. What is gel electrophoresis? Separation and isolation of DNA fragments. So cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA. हमको वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए, वेक्टर के साथ लिंक करने के लिए स्टूडेंट्स वी नीड DNA fragments. Then there is a technique by which DNA fragments they can be separated और उस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वी हैव ऑलरेडी डन स्टूडेंट्स के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करा था, ये जो टेक्निक है इसमें हमने DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं एंड इसके लिए वी विल ऐसा हमने एक सेटअप बनाया जिसमें कि ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, सो दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स यूज़ करा था, जेल यूज़ किया था स्टूडेंट्स, एगरोस जेल हमने यूज़ किया। DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो यहाँ पर DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और जो स्मॉलर साइज जो फ्रेगमेंट्स हैं दे विल मूव फास्टर और वो फार्दर जाएंगे, दूर जाएंगे। जितना स्मॉल होगा DNA फ्रेगमेंट का साइज उतना वो दूर जाएंगे, फार्दर जाएंगे। सो DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं according to their, so this is G students, so it can be DNA fragments can be separated according to their size through the sieving effect of the agarose gel. So smaller size fragments जो हैं they will move farther, तो ये दूर जागे। जितना DNA के small size जो होगा fragments का वो बड़ा होगा, वो यहाँ पे larger होंगे fragments और यहाँ पे जो होंगे वो smaller होंगे। So negatively charged जो fragments हैं DNA के they can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field. ओके, देन स्टूडेंट जब DNA के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं तो उनको विजुअलाइज करने के लिए हमने स्टेन यूज़ किया, दैट इज़ इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू UV रेडिएशन। सो इस तरह से हमें ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स जो हैं वो DNA के फ्रेगमेंट्स के हम देख सकते हैं। देन सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA दे आर कट फ्रॉम द जेल एंड दिस स्टेप इज़ नोन एज इल्यूजन। सो हमारे पास जो DNA फ्रेगमेंट आ गया, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया स्टूडेंट, दैट पर्टिकुलर DNA फ्रेगमेंट जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग recombinant DNA. So these fragments जो हैं we just link them or join them with the cloning vectors which is our vehicles, और जो हमारी मैंने आपको बताया था वो हमारे vehicles हैं जो हमारे gene of interest को हमारे host के पास लेके जाएंगे। Okay, then the next step is very interesting student. It is the amplification of gene of interest using PCR. What is PCR? PCR का कई बार एग्जाम्स में स्टूडेंट फुल फॉर्म पूछा जाता है। इट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ डिज़ायर्ड DNA इन विट्रो, राइट?
सो दिस ये जो टेक्निक है इसमें हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, एंड वी यूज़ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमको न्यू डीएनए बनाना है। तो विच एंजाइम वी यूज स्टूडेंट? वी विल यूज़ डीएनए पॉलीमरेज, राइट। और इसमें हम स्टूडेंट्स प्राइमर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमर्स, हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था कि प्राइमर्स हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ईजी, it becomes very easy to add nucleotides on the already existing small chain, that is primer, right? So PCR technique जो थी, that was developed by Carey Mullis in 1985. Primers are small chemically synthesized oligonucleotides. They are complementary to the region of the DNA. जो हमारा जो DNA के जो bases हैं उनके ये complementary stand ही होते हैं. Okay. So these are the 3 main steps which are required in the process of PCR, or these are the main steps which are required for amplification of the gene of interest. Students, we will study these steps one by one. They are very, very easy to understand. First step is the denaturation step. What is denaturation students? हमारा DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, सो हम DNA जो है उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 94 डिग्री C पे। सो उससे क्या होता है? डीनेचुरेशन हो जाता है, DNA के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन C and G. Similarly, there is 2 hydrogen bond between A and T. So by denaturation से क्या होगा? हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड DS होता है, डबल स्टैंडर्ड, एंड डबल स्टैंडर्ड DNA जो है दैट बिकम सिंगल स्टैंडर्ड. देन सेकेंड इज एनीलिंग एंड थर्ड इज द एक्सटेंशन. वी विल स्टडी these steps one by one. Okay. So let us see what is denaturation. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि denaturation is the heating of target DNA. स्टूडेंट्स, टारगेट DNA क्या है? ये जो डार्क शेडेड है ये हमारा टारगेट DNA है. सो DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है. DNA डबल स्ट्रैंडेड से क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA, और ये इसका वो रीजन है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है. सो DNA 5 to 3 एंड 3 to 5 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है. सो द फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन में क्या होता है कि DNA को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं 94 डिग्री C, एंड इट लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड. सो DNA के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गए. सेकेंड इज एनीलिंग. व्हाट इज एनीलिंग? यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 2 प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे ईच सिंगल स्ट्रैंड ऑफ टारगेट DNA एक्ट एज ए टेम्पलेट. जब DNA से हमें न्यू DNA बनाना है तो DNA जो स्ट्रैंड होगा वो एक टेम्पलेट का काम करता है. न्यू DNA जो होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है? 5:3 डायरेक्शन में बनता है. सो DNA जब सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया तो ईच स्ट्रैंड जो है इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, राइट. सो इसमें स्टूडेंट्स तो फर्दर एनीलिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग ऑफ 2 प्राइमर्स. टेम्परेचर अब लो हो गया, 52 डिग्री C हो गया एट द 3 एंड ऑफ द DNA टेम्पलेट. सो एनीलिंग स्टेप में क्या है? जो हमारे स्टूडेंट्स 2 प्राइमर्स हैं वो एनील करते हैं, वो हाइब्रिडाइज करते हैं टू ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA टेम्पलेट, ठीक है. एनीलिंग सीक्वेंस जो है वो 3' एंड पे होती है ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट. सो ये हमारे दोनों प्राइमर्स हो गए. यहाँ पे प्राइमर के बाद एक्सटेंशन होगा. एक्सटेंशन मीन्स हमारा न्यू DNA जो है उसकी फॉर्मेशन होगी. सो व्हाट वी रिक्वायर फॉर दिस प्रोसेस? DNA पॉलीमरेज चाहिए हमें, और सेकेंडली हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. व्हाट वी नीड? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू DNA. सो एक्सटेंशन इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर. अभी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स इट इज़ ईजी टू ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मॉल चेन. जो हमारे पास ये स्मॉल चेन है उसके साथ हमारे न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं और न्यू DNA जो है वो बन जाते हैं. और पर्टिकुलरली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, फॉर द PCR द DNA पॉलीमरेज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वन. वी यूज़ टैग पॉलीमरेज. स्पेशल पॉलीमरेज यूज़ होता है, टैग पॉलीमरेज, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज थर्मस एक्वेटिकस. सो ये जो बैक्टीरिया, ये जो टैग पॉलीमरेज है, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. इतने हाई टेम्परेचर पे ये पॉलीमराइज करता है और न्यू DNA बनाता है. सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, और इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ DNA जो है, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द विट्रो. अप टू 1 बिलियन कॉपीज़ आप इस डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट्स. वो एम्पलीफाई करके इवन 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड DNA सेगमेंट्स जो हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड.
So this is PCR, which is known as polymerase chain reaction, and this technique was developed by Kary Mullis 1985. Okay, now the next step is the insertion of recombinant DNA into the host. हमारा recombinant DNA जो है स्टूडेंट्स वो होस्ट के अंदर कैसे जाएगा. वी हैव स्टडीड डिफरेंट टेक्निक्स स्टूडेंट्स. हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से हम डाइवेलेंट आयंस कैल्शियम आयंस के साथ हमने ट्रीट करा, एंड दैट enhances the efficiency of entry of DNA. तो उसमें pores create हो गए थे. Then we had another technique, that is incubation of cell with recombinant DNA on the ice, followed by giving them heat shocks. So उससे जो है DNA का जो entry है, recombinant DNA entry into the host, that becomes very easy. Then we studied about electroporation, gene and micro injection, gene gun method. So these are the different ways. So any of method हम use कर सकते हैं स्टूडेंट. उससे जो ligated DNA है, जो हमारा recombinant DNA है, उसको introduce कर सकते हैं into the host, and they take up the DNA from the surrounding. Now if recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene, स्टूडेंट अगर हमारे पास जो हमारा recombinant DNA बना, I will use now different color to show you the recombinant DNA. Just wait student. So suppose this is the recombinant DNA बन गया. So ये हमारा hybrid बन गया. Suppose recombinant DNA जो है it has ampicillin, यहाँ पे जो है इसके पास ampicillin जो है वो selectable markers gene हम use करते हैं. Suppose it has ampicillin resistant gene. Now it is transferred to the host. सो बेस्ट होस्ट जो है वो ई कोलाई है. तो होस्ट क्या होगा, होस्ट एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट बन जाएगा बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इनटू द होस्ट सेल. सो ये सेल क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया. Cell is transformed because recombinant DNA is now inserted into the host cell. So अगर transformed cell जो है उसको हम culture plate, agar plate तैयार किया and we added ampicillin into that. So transformants जो होंगे वो grow करेंगे. Non-transformant will not grow. Why transformant will grow? Because they have ampicillin resistant gene. So अगर हम medium में ampicillin add कर रहे हैं तो वो resist करेंगे. ठीक है, सो दे विल ग्रो. सो ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं दे विल ग्रो ऑन द कल्चर प्लेट्स. नॉन ट्रांसफॉर्म जो सेल होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, दे विल डाई बिकॉज दे आर एम्पीसिलिन सेंसिटिव. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. सो अभी स्टूडेंट क्या हुआ, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने होस्ट के अंदर ऐड किया. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जो हमारा होस्ट है ई कोलाई जो है उसमें से हमने अपना प्लाज्मिड जो है वो बाहर निकाला, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. उस प्लाज्मिड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो उसमें हमने इंसर्ट कर दिया, राइट. तो वो प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया वो, ठीक है. उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, तो अभी वो होस्ट में जाएगा, वो रेप्लिकेट करेगा. देन नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. सो अल्टीमेटली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एम क्या है, वी वांट अ डिज़ायरेबल प्रोटीन. या हमें वो प्रोटीन हार्मोन हो सकता है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए. सो दिस सेल्स जो हैं फॉरेन जीन के साथ ये लेबॉर्ट्री में ग्रो कर सकते हैं. इनको कल्चर्स जो हैं दे कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट डिज़ायर्ड प्रोटीन एंड प्योरीफाइड बाय यूजिंग सेपरेशन टेक्निक्स. सेल जो है वो हमको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम. वी हैव कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम, उसमें मीडियम जो है एक साइड से ड्रेन होता रहता है और दूसरी साइड से हम फ्रेश ऐड कर सकते हैं. लार्ज बायोमास जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है. देन स्टूडेंट्स अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, सो फॉर दैट वी नीड बायो रिएक्टर्स. बायो रिएक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स दे आर वेसल्स हैं. व्हाट आर बायो रिएक्टर्स? बायो रिएक्टर्स जो हैं अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, सो फॉर दैट वी नीड बायो रिएक्टर्स. सो बायो रिएक्टर्स में हम 100 से लेके 1000 लीटर्स तक कल्चर जो है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं. सो दे आर, यू कैन सी द बायो रिएक्टर्स, दे आर लार्ज वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट और ह्यूमन सेल्स. सो बायो रिएक्टर्स जो हैं, बायो रिएक्टर के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा
टारगेट प्रोटीन है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, उसको हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो बायोरिएक्टर जो है इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, जो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, राइट टेम्परेचर, राइट पीएच, देन सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. Students, these are two types of bioreactors. First is the simple stirred टाइप बायोरिएक्टर है जो कॉमनली यूज़ होता है, और सेकंड जो है ये एक बेसिक डिज़ाइन है, सिंपल स्टर्ड टाइप फर्मेंटर है, एंड सेकंड जो है वो स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंकर है थ्रू विच एयर बबल्स जो हैं वो स्पर्ज किए जाते हैं. सो आप ये देख सकते हो सिंपल ये बायोरिएक्टर्स हैं. तो ये किस तरह से बेसिक डिज़ाइन है फर्मेंटर का. तो एक स्टेनलेस स्टील का वेसल होता है इसकी, और इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है. तो इसके अराउंड ये एक जैकेट होता है जिसमें वाटर सर्कुलेट होता रहता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए विद इन द फर्मेंटर. उसके पास यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल है, देन एसिड बेस है पीएच कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हमें एक राइट पीएच जो है वो चाहिए. देन उसके पास यहाँ पे ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, आप यू कैन सी ये एजिटेटर्स हैं. एजिटेटर्स जो होते हैं उनके पास ये बहुत सारी ये फ्लैट ब्लेड्स हैं. फ्लैट ब्लेड्स जो हैं ये नीचे यहाँ पे मोटर लगा हुआ है. विद द हेल्प ऑफ मोटर जो है हम इसको एजिटेट करते हैं. ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर. उससे जो कंटेंट है अंदर उसकी थॉरो मिक्सिंग हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे विल कम क्लोज विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसके पास प्रॉपर एरेशन का अरेंजमेंट है, टेम्परेचर है, पीएच कंट्रोल है इसके पास. देन एयर जो है उसको हम फोर्स इन करते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक, तो एयर जो है वो जाता है. सो देर इज़ अ पोरस रिंग होती है जिसको हम स्पार्जर कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पार्जिंग. तो ये दो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो बायोरिएक्टर्स हैं. तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से हम अपने न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल सकते हैं. उसके बाद विल सी अनदर डायग्राम. सो मोस्ट कॉमनली यूज जो बायोरिएक्टर है स्टूडेंट्स वो स्टर्ड टैंक रिएक्टर है. सो मोस्टली सिलेंड्रिकल है विद अ कर्व्ड बेस है. आप नीचे से इसका बेस देख सकते हो. सो ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स. स्टरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. सो ये पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इसके पास एक एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल है, पीएच कंट्रोल है, सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर. तो हम कल्चर को विड्रॉ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. बेस ऑफ द टैंक जो होता है वहाँ पे एक हार्वेस्ट लाइन होती है टू एक्सट्रैक्ट द कल्चर मीडियम एंड द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स. ओके, देन हमारे पास स्टूडेंट लास्ट स्टेप आ गया विच इज़ नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो व्हाट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस. जो हमने लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्ट बनाया, अभी मैंने आपको बताया हम टारगेट प्रोटीन्स जो हैं वो, या जो हमारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी लार्ज स्केल इन द बायोरिएक्टर्स. सो जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं. सो जो कलेक्टिव स्टेप्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए उसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे. इट इज़ द सीरीज ऑफ प्रोसेस such as separation and purification of the products after the biosynthetic stage. The product is formulated with suitable preservative. तो जब इसमें suitable preservatives हम यूज़ करते हैं, so उसके बाद clinical ट्रायल्स आर कैरिड आउट. सपोज हमने कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ हमारा ऐसा प्रोटीन्स हैं विच आर यूज्ड एज अ मेडिसिन, सो उसके लिए क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं, ट्रायल्स कैरी आउट किए जाते हैं मार्केट में उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए. उसका क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मेंटेन किया जाता है. सो ये जो सारे प्रोसेस हैं, जब हमारे बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट आ गया तो उसको यूज़ करने से पहले उसको सेपरेट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, और अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए वो है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स आर कैरिड आउट एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो मेंटेन. ऑल दीज स्टेप्स जो हैं सर उनको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग process. Okay students, so that's all students. इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने आज अपने बायोटेक्नोलॉजी के, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के आज डिफरेंट स्टेप्स जो हैं स्टूडेंट्स हमने स्टडी करे. किस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना जो जीन को प्रेपरेशन किया, देन जीन जो है उसको हम जो वेक्टर के अंदर किस तरह से इंसर्ट करते हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल एंड हाउ द क्लोन जीन इज़ डिटेक्टेड, एंड फाइनली हमने देखा कि किस तरह से बायोरिएक्टर्स के अंदर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेंट
recombinant proteins का, and finally we studied about the downstream processing in which the products जो हैं उनका they are separated, they are purified, then their preservatives are added into them and quality control is also maintained. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 दैट इज़ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो है वो इसके साथ आज हमारा ख़त्म होता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. So that's all students. Thank you very much for watching. Have a nice day.